Hello everyone and welcome to Data Frame Part 6. Now, in the previous video, we have already learned how to select the data from the data frame. We have selected the certain rows or the subset from the data frame using the LOC, ILOC and IX. Also, we have learned about the indexing operator that is used to apply certain conditions on the data frame, or it can also be used to access the columns from the data frame. In this session, we are going to learn about applying a Boolean mask to the data frame, means the list of true and false to the data frame. Masking based on the column value, means applying certain conditions on the column and passing those conditions to the data frame. Next is masking based on the index value, means we will apply certain conditions on the index and that condition will be applied to the data frame. So data frame with Boolean indexing helps us to select the data or filter the data from the data frames. We already know that if we have the data frame with the Boolean index, means the index is in the form of true and false, we can use the LOC, we can use the ILOC and also the IX. So we already know how to use these parameters or how to use these methods. Now in this session we are going to learn applying a Boolean mask to the data frame, masking data based on the column value and masking data based on the index value. Now suppose you have a data frame in which we have index labels. Okay? Now it is not in the format of true or false, it is in some numeric format or it may be in the string formats. So we create the Boolean vectors and we pass those Boolean vectors to the data frame. So this is also the another concept of Boolean indexing. So when we apply the condition to the data frame, then each row of the data frame will be checked and you will get the true and false value depending on whether or not it meets the criterion. Now, for example, find the persons living in Delhi. Now you have this data frame and in this data frame you can see the persons living in Delhi. Now there are two persons who are living in Delhi. So Rakesh is living in Delhi and you can see this Deepak is living in Delhi. इन दोनों रोज के लिए आपको वैल्यू मिलेगी ट्रू. ठीक है, ये दोनों रोज के लिए आपकी वैल्यू हो जाएगी ट्रू एंड फॉर रेस्ट ऑफ द रोज यू विल हैव द वैल्यूज एज फॉल्स. यहाँ आपकी वैल्यूज रहेगी फॉल्स. So when you apply this condition on the column of the data frame, you will get the series of true and false. आपको एक series मिलेगी जिसमें values रहेगी true and false की. So you will get a Boolean series. Now let's see another example. Persons with age greater than 55. Now age column पर आपकी condition apply हो रही है. इस age column को आप देखिए, there are only two persons who are having the age greater than 55. So ये दो rows के लिए आपकी value रहेगी true and for rest of the rows you will have the values false. So again when you apply this condition you will get a Boolean series. Now let's see how to apply the condition on the data frame columns. When we pass a condition to the indexing operator to select only the rows or the data in the data frame that meets the given condition, means indexing operator को हम condition दे सकते हैं और इसके थ्रू हमें डाटा सेलेक्ट करने में हेल्प होगी. जैसे यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल है, to display the details of students whose age is greater than 50. So आपकी condition देखिए क्या है, age is greater than 50. Now age greater than 50 means age column पर आप condition लगा रहे हैं, this is your age column, आप age column पर condition लगा रहे हैं और condition है आपकी greater than 50. अब कॉलम कैसे एक्सेस कर पाएंगे हम, कॉलम कैन बी एक्सेस्ड बाय यूजिंग दिस सिंटैक्स, ये हम पहले भी देख चुके हैं.
Using this syntax, using the indexing operator, df that is the name of the data frame, square bracket में हम लिखेंगे कॉलम का नाम. So in this way you can get the column of the data frame. अब इसमें आगे कंडीशन है आपकी, इस कॉलम को हमें चेक करना है और इसमें हमें चेक करनी है वैल्यूज ग्रेटर देन 50. ठीक है, सो आप देख सकते हैं df स्क्वायर ब्रैकेट में एज, दिस विल रेफर टू द कॉलम ऑफ द डाटा फ्रेम. एंड टोटल कंडीशन आपकी देखिए, पूरी कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी, df एज ग्रेटर देन 50. सो व्हेन यू अप्लाई दिस कंडीशन टू द डाटा फ्रेम, जैसे कि इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं ग्रेटर देन 50 के लिए देखिए आपकी ये एक वैल्यू है और ये एक वैल्यू है. तो दिस टू रोज विल हैव द वैल्यूज ट्रू. देखिए ये दो रोज हैं आपकी जिसमें आपकी वैल्यूज आएगी ट्रू, और रेस्ट ऑफ द रोज इसके लिए वैल्यूज आएगी आपकी फॉल्स, क्योंकि यहाँ पर एज की कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है एज पर द कंडीशन. सो इफ यू प्रिंट दिस कंडीशन, यदि इसे प्रिंट करते हैं, इस कंडीशन को हम प्रिंट करते हैं, इसके आगे यदि हम प्रिंट लिखते हैं तो यू विल गेट दिस बुलियन सीरीज. अब इसे बुलियन सीरीज क्यों कहा जा रहा है, दिस इज कॉल्ड एज द बुलियन सीरीज बिकॉज यू आर हैविंग द वैल्यूज, डाटा वैल्यूज एज ट्रू एंड फॉल्स. नाउ you can apply the condition to the indexing operator. अब इस कंडीशन को हम इंडेक्सिंग ऑपरेटर पे अप्लाई कर सकते हैं. कैसे अप्लाई करेंगे, df दैट इज द नेम ऑफ द डाटा फ्रेम, इंडेक्सिंग ऑपरेटर के अंदर आपको ये पूरी कंडीशन लिखनी है. ठीक है, अब इंडेक्सिंग ऑपरेटर के अंदर यदि हम ये पूरी कंडीशन लिखते हैं तो यू विल गेट द सबसेट ऑफ द डाटा फ्रेम, यू विल गेट द रोज विच आर हैविंग ट्रू वैल्यूज. ठीक है, जहां पर ये कंडीशन ट्रू हो रही है वो रोज आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले होगी. इट मीन्स you will get the rows as index number 1 and index number 3. ये दो rows आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगी. You will get the resultant data frame. Now applying the boolean mask to the data frame. अब इंडेक्सिंग ऑपरेटर में, जैसे कि एक एग्जांपल देखिए आप स्क्रीन पे, इंडेक्सिंग ऑपरेटर में वी कैन पास द ट्रू एंड फॉल्स लिस्ट. ठीक है, we can pass a list of true and false to the data frame using the indexing operator. Now when we pass the list of true and false to the data frame, the resultant output or the resultant data frame will contain only the true values from that data frame. अब ये कैसे डिसाइड होगा कि कौन सी वैल्यू ट्रू है और कौन सी वैल्यू फॉल्स है, तो यहाँ पर आप देखिए we have three values, true, false, true. Why three values? Because we have three rows. So first value, first index number is 2. So 2 के लिए आपकी वैल्यू रहेगी true. So the first value will be for 2. Next index number is 4. So 4 के लिए you have the value false. Next index number in your data frame is 5. तो 5 के लिए आपकी वैल्यू हो गई है true. ठीक है, तो इसमें से true values ही आपकी print होगी. It means 2 index number and 5 index number row will be printed. So you can see the output is the second index and the 5 index. ठीक है, these two rows will be printed on the screen. So what we have done here is, when we apply the boolean mask to the data frame, we apply the list of true and false of the same length of as contained in the data frame. Means जितनी rows आपके पास है उतनी values आपको true and false की provide करनी है. When we apply this list of true and false, then only the true values will be printed. अब यहाँ पर true and false values जब हम देते हैं तो these values are passed to each row depending upon the index numbers. जैसे कि इस example में हमारी values क्या जा रही है, पहला इंडेक्स नंबर हमारा 2 है तो पहली वैल्यू 2 को जा रही है, सेकंड वैल्यू फोर्थ इंडेक्स के लिए जा रही है, थर्ड वैल्यू 5 पे जा रही है. नाउ ओनली ट्रू वैल्यूज विल बी प्रिंटेड. इसका मतलब है सिर्फ सेकंड एंड फिफ्थ इंडेक्स रोज विल बी प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन. So second and fifth values you will get as output. So you will get a subset of this data frame having these two index, as you can see. Now the example, we have created a data frame and in this data frame
यू कैन सी हमने प्रिंट किया है D1, तो एज इट इज प्रिंटेड। उसके बाद हमने यहाँ पर बुलियन मास्क लगाया है। बुलियन मास्क मतलब लिस्ट ऑफ ट्रू एंड फॉल्स। तो यहाँ पर देखिए D1 डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स है, मतलब आपको सबसेट मिलेगा, ठीक है। यू विल गेट द सबसेट ऑफ अ डाटा फ्रेम, दैट इज अ रिजल्टेंट डाटा फ्रेम। ट्रू एंड फॉल्स वैल्यूज दी हुई है। अब यहाँ पर ट्रू और फॉल्स वैल्यूज जो आपको दी है दैट विल डिपेंड अपॉन द इंडेक्स नंबर्स, किसको कौन सी वैल्यू जाएगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, पहला इंडेक्स नंबर है आपका 1, इसके लिए ट्रू वैल्यू। सेकेंड इंडेक्स नंबर एज पर योर डाटा फ्रेम इज 5। थर्ड इंडेक्स नंबर है आपका 8। अब सिर्फ ट्रू वैल्यूज ही आपकी प्रिंट होगी, रोज विद द ट्रू वैल्यूज। सो आपकी रोज जो प्रिंट होनी है वो है रो नंबर 1 एंड रो नंबर 5। सो आउटपुट देखिए आप यहाँ पर, रो नंबर 1 एंड रो नंबर 5 is printed on the screen. This is the Boolean mask, means providing the list of true and false to the data frame. This process is called as Boolean mask, and by using this method we can extract the subset of the data frame. Now the next method is masking data based on the column value. It means we can apply the conditions to the data frame. Now conditions can be applied by using these operators: equals to operator, less than, greater than, less than, equals to. Now when we apply these operators, then every element in the column will be checked for this condition. When we apply this condition on the columns of the data frame, then it produces the Boolean series. जब हम ये कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं डाटा फ्रेम के कॉलम को, तो इट गिव्स यू द बुलियन सीरीज। अब इस बुलियन सीरीज को when we pass this Boolean series to the data frame, then it produces the resultant data frame. अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए यहां पर, when you apply the condition on the column and यहां पर हमने लिखा print condition, so आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, you will get the Boolean series, means you will get the series of true and false. Now when we apply the condition to the data frame using the indexing operator, you will get the subset of the data frame. So now let's see with an example. यहाँ पर देखिए, you have the data frame. Clear? ये मेरा एक डाटा फ्रेम है। इस डाटा फ्रेम में आप देखिए हमने कंडीशन लगाई है, सिंटेक्स है आपका प्रिंट कंडीशन। अब कंडीशन हम लगा रहे हैं कि प्लेस इज दिल्ली। अब प्लेस दिल्ली के लिए आपके पास देखिए दो ही ऑप्शंस है यहाँ पर। पहला है आपका राकेश इज लिविंग इन दिल्ली एंड द सेकंड वन इज गणेश इज लिविंग इन दिल्ली, ठीक है। तो इन दोनों रोज के लिए आपको वैल्यू मिलेगी ट्रू और रेस्ट ऑफ द रोज के लिए आपको वैल्यू मिलेगी फॉल्स। सो कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें बुलियन सीरीज मिलेगी एंड इस बुलियन सीरीज में देखिए आपकी ये वैल्यूज रहेगी, ठीक है। So what you are going to get is, when you print this condition, you will get this series. अब we apply this condition to the data frame. It means यहाँ पर देखिए आप, हमने क्या किया है, df के बाद यहाँ पर हमने अप्लाई की है condition based on the column. So when we apply the condition to the data frame using the indexing operator, you will get the data frame, ठीक है। आपको एक सबसेट ऑफ द डाटा फ्रेम मिलेगा, पार्ट ऑफ द डाटा फ्रेम मिलेगा और इसमें सिर्फ ट्रू इंडेक्स वैल्यूज ही आपकी प्रिंट होगी, द रोज विच आर हैविंग द ट्रू इंडेक्स। मतलब आपकी जो रोज प्रिंट होगी वो ये है, एज पर द कंडीशन जो रोज आपकी ट्रू है, those will be printed on the screen. So Rakesh is living in Delhi, Ganesh is living in Delhi. So as per our condition, these two rows will be printed from the data frame. Now let's see the code. यहाँ पर देखिए एक डाटा फ्रेम क्रिएट किया गया है, इस डाटा फ्रेम को प्रिंट किया, इट कंटेन्स 4 रोज। यहाँ मैंने कंडीशन अप्लाई की है D1 एज लेस देन इक्वल्स टू 30। नाउ एज लेस देन इक्वल्स टू 30, आप देखिए लेस देन इक्वल्स टू 30 के लिए आपके कंडीशंस क्या क्या है,
ये एक कंडीशन आएगी आपकी, इस कॉलम को चेक करना है हमें, एंड दिस कंडीशन, ठीक है। आपकी दो रोज हैं जिसमें कि आपकी एज लेस देन इक्वल्स टू 30 सेटिस्फाई हो रही है। सो दिस टू रोज विल हैव द ट्रू वैल्यूज, जैसे कि आप यहाँ आउटपुट में देख सकते हैं, ये दो रोज हैं जिसमें कि ट्रू वैल्यूज हैं, एंड दिस other rows they are having the false values. So when I print the condition, I am getting this series, मुझे ये series मिल रही है। Now if I want the data frame, then I should apply this condition to the data frame. So देखिए आप यहाँ पर, if I apply the condition to the data frame, if I apply, ये कंडीशन मैं डाटा फ्रेम को अप्लाई कर रही हूँ यूजिंग दिस इंडेक्सिंग ऑपरेटर। मैंने लिखा है D1 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ये कंडीशन एज इट इज हमने लिखी है, यहाँ आप देख सकते हैं इस कंडीशन को ऐसे लिखा है। अब यहाँ पर देखिए आपका कंडीशन या आपका आउटपुट चेंज होगा। पहले प्रिंट स्टेटमेंट में यू आर गेटिंग दिस सीरीज, ठीक है, यहाँ पर आपको एक बुलियन सीरीज मिली है, और जब आप ये स्टेटमेंट लिखेंगे जिसमें कि आपने कंडीशन अप्लाई की है कॉलम के लिए, तो यू विल गेट दिस आउटपुट। इट मीन्स आपको ट्रू वैल्यूज जहां पर है, इंडेक्स नंबर 1 के लिए यू आर हैविंग द ट्रू वैल्यूज एंड इंडेक्स नंबर 9 के लिए यू आर हैविंग द ट्रू वैल्यूज। तो देखिए दिस टू रोज विल बी प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन। इट मीन्स दैट when you print the condition, it means that when you print the condition, you will get the series of true or false, means boolean series, and when you print the data frame on which we have applied the condition, then you will get the subset of the data frame. Now as we have applied the condition on the columns, we can also apply the condition on the index. So condition can be applied in the same way by using these operators. Now again, when we apply the conditions on the index, then each row, each index label will be checked for that condition. Now when we apply these conditions on the index, then when we apply these conditions or the operators on the index, then it produces the boolean vector. Now in this case, यहाँ पर आपका सीरीज नहीं आएगा, यहाँ पर बुलियन वेक्टर आएगा। इट मीन्स इट विल बी एन अरे ऑफ ट्रू एंड फॉल्स। नाउ व्हेन वी अप्लाई दिस बुलियन वेक्टर टू द डाटा फ्रेम, देन इट प्रोड्यूसेस द रिजल्टेंट डाटा फ्रेम। अब देखते हैं इस एग्जांपल में, देखिए आप, यहाँ एक एग्जांपल है जिसमें कि हमने चेक किया है। अब इंडेक्स को एक्सेस करने के लिए हम लिखेंगे df.index। जैसे कि कॉलम को एक्सेस करने के लिए हमने लिखा था df स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कॉलम का नेम इन कोटेशंस। इंडेक्स को एक्सेस करने के लिए हम लिखेंगे df.index इक्वल्स टू 2 मीन्स जिसका इंडेक्स 2 है। सो जिसका इंडेक्स 2 है मतलब ये रो आ गई आपकी, इंडेक्स इक्वल्स टू 2। जैसे ही हम ये चेक करेंगे, आप देखेंगे इस रो के लिए मुझे मिलेगी वैल्यू ट्रू, ठीक है, एंड फॉर रेस्ट ऑफ द रोज आई विल गेट द वैल्यूज एज फॉल्स। बाकी रोज के लिए मेरी वैल्यूज रहेगी फॉल्स। सो यहाँ मुझे सीरीज नहीं मिलेगी, यहाँ मुझे मिलेगी वैल्यूज अरे की, बुलियन अरे, ठीक है। सो आई विल गेट दी वेक्टर, बुलियन वेक्टर, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, आई विल गेट दिस बुलियन वेक्टर। ना इफ आई अप्लाई दिस कंडीशन टू द डाटा फ्रेम, अब यहाँ पर मैंने डाटा फ्रेम पे ये कंडीशन अप्लाई की है। देखिए आप यहाँ पर डाटा फ्रेम ये है मेरा डीएफ, इसके ऊपर यूजिंग द इंडेक्स ऑपरेटर आई हैव अप्लाइड दिस कंडीशन, ठीक है। इंडेक्सिंग ऑपरेटर की हेल्प से हमने यहाँ कंडीशन अप्लाई की है। सो इफ वी पास द कंडीशन to the data frame using the indexing operator, then you are going to get the true values, ठीक है। it means आपका true index number आपका print होगा, ठीक है। true means the second index number will be printed for which the condition is true, और condition यहाँ पर क्या है, index number 2। so index number 2 की पूरी रो आपकी स्क्रीन पर प्रिंट होगी। so आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम इंडेक्स के ऊपर कंडीशन लगा रहे हैं तो आपको मिलेगी एक बुलियन वेक्टर और बुलियन अरे आपको मिलेगा, और यदि आप इस बुलियन अरे को डाटा फ्रेम को पास करते हैं, अप्लाई टू द डाटा फ्रेम करते हैं, तो यू विल गेट द डाटा फ्रेम। नाउ एग्जांपल देखिए,
we have created a data frame which has this 3 index 1 3 9, ठीक है, 3 रोज हमने क्रिएट कर दी डाटा फ्रेम में। इसके बाद प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है कंडीशन इक्वल्स टू एंड आई हैव अप्लाइड दिस कंडीशन। अब इस कंडीशन को देखिए मैंने अप्लाई किया तो क्या हुआ, कोटेशंस में कंडीशन लिखा है तो स्क्रीन पे एज इट इज यहाँ पर कंडीशन इक्वल्स टू आया। इसके बाद हमने प्रिंट किया है d1 डॉट इंडेक्स इक्वल्स टू 3। सो यहाँ पर ये 3 मेरा ये है इंडेक्स नंबर, इस 3 इंडेक्स नंबर के लिए यहाँ पर मुझे मिलेगी ट्रू वैल्यू और रेस्ट ऑफ द रोज के लिए मुझे मिलेगी फॉल्स वैल्यू। सो मेरा आउटपुट देखिए क्या आ रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ मेरा आउटपुट मुझे स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है फॉल्स ट्रू फॉल्स, ठीक है, बीच में कॉमा नहीं है। बीच में यदि कॉमा होता तो वो हमारी लिस्ट होती, कॉमा नहीं है, इट मीन्स इट इज एन अरे, इट इज अ वेक्टर, सो इट इज अ बुलियन वेक्टर, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट इंडेक्स नंबर के लिए फॉल्स वैल्यू है, सेकंड इंडेक्स नंबर के लिए ट्रू वैल्यू है और थर्ड इंडेक्स नंबर के लिए फॉल्स वैल्यू है। सो यू आर गेटिंग अ बुलियन वेक्टर। अब ये d1 डॉट इंडेक्स इक्वल्स टू 3 को हम यहाँ पर पास कर रहे हैं, वी आर पासिंग इट टू द डाटा फ्रेम। So when we pass it to the data frame, what we are going to get is we are getting the output as a data frame, as a subset of the data frame। तो देखिए हमें इसका आउटपुट ये मिल रहा है। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि जब हम कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं on the index, then you are getting the boolean vector and we are passing the condition to the data frame which is applied on the index, then we are getting the subset of the data frame। So अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है उससे ये चीज क्लियर हो जाती है कि subset selection with ILOC, LOC and the indexing operator uses the row or the column labels and ILOC it uses the integer locations to make the selections। Actual data of series or the data frame is not used at all during the selection। Yes, ये हमने देखा है, रो कॉलम लेबल्स या फिर इंटीजर लोकेशंस हम यूज करते हैं टू सिलेक्ट द सबसेट, लेकिन जब हम बुलियन इंडेक्सिंग यूज करते हैं, ठीक है, द सिलेक्ट subset selection with boolean indexing will select the subsets of data based on the actual values of data in the series or the data frame। ये यूज करता है एक्चुअल वैल्यूज पे, बिकॉज हम इस पे देखिए कंडीशन अप्लाई करते हैं और कंडीशन यदि ट्रू है सो कंडीशन ट्रू तभी होगी जब वो एक्चुअल डाटा उसको चेक करेगा। डाटा को चेक किया, उसके बेसिस पे ट्रू वैल्यूज मिली और वो ट्रू वैल्यूज ही आपकी प्रिंट होती है। इट मीन्स it selects the data whenever we use the boolean indexing, it selects the data based on the actual values of data and not on the row column labels or the integer locations। इसके बाद देखते हैं, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं फटाफट अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। देखिए ये हमारी डाटा फ्रेम है, इस डाटा फ्रेम पे if I write the statement print df place equals to Delhi, सबसे पहले आपको देखना है कि हम प्रिंट कंडीशन कर रहे हैं या फिर वी हैव अप्लाइड द कंडीशन टू द डाटा फ्रेम। इस केस में हमने क्या किया है, हमने प्रिंट की है कंडीशन। तो कंडीशन प्रिंट की है मीन्स यू आर गोइंग टू गेट अ सीरीज, और कंडीशन किस पे अप्लाई की है, कॉलम के ऊपर। तो कॉलम पे जब अप्लाई करते तो बुलियन सीरीज हमें आउटपुट में मिलती। तो यहाँ पर देखिए दिल्ली के लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं, first index row and 8th index row। So for these two rows you will get the true values and for rest of the rows you will get the false values। तो देखिए ये आपका आउटपुट होगा जिसमें कि फर्स्ट इंडेक्स नंबर के लिए ट्रू वैल्यूज है एंड 8th इंडेक्स नंबर के लिए ट्रू वैल्यूज है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, प्रिंट df डॉट इंडेक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। Now this is your condition and I have applied the condition to this data frame, so I will get the subset of the data frame। condition क्या है, जिनके इंडेक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 है। सो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 के लिए एक 7th इंडेक्स आ जाएगा और एक 8th इंडेक्स आ जाएगा। तो दिस टू रोज विल बी प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन। देखिए आप लोग, नेक्स्ट देखते हैं,
What is the benefit of applying Boolean mask to the data frame? When we apply the Boolean mask to the data frame, we get the subset of the data frame, or it is used to select the data from the data frame. It filters the data from the data frame. Now what happens when the Boolean mask is applied to the data frame? Boolean mask means the list of true and false. When we apply the list of true and false to the data frame, it prints only the true values in the data frame. आप ये सारी चीज़ें रिवाइज करिए। यदि कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।